بڑے احکامات۔ روحانی رہنماؤں کو تمام ایمانداروں کو یہ تعلیم دینی چاہیے کہ وہ خدا اور ایک دوسرے سے محبت رکھیں۔ میں نوید ملک ہوں۔ مکاشفہ کے دوسرے باب میں خداوند یسوع مسیح پہلے فرشتہ سے بات کرتا ہے، بنیادی قائد، روحانی رہنما، افسس کی کلیسیا کے پیامبر کو۔ یہ دوبارہ سے ہمیں افسس میں لے جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا مقام تھا جہاں پولس آیا، جہاں اس نے اپنے 3 برس گزارے اور 2 سال تک ترنس کے مدرسہ میں بحث کرتا رہا۔ یہاں اعمال 19 باب کی 9 اور 10 آیت میں بڑی دلچسپ بات پائی جاتی ہے، جہاں لکھا ہے، لیکن جب بعض سخت دل اور نافرمان ہو گئے، بلکہ لوگوں کے سامنے اس طریق کو برا کہنے لگے، تو یعنی پولس نے ان سے کنارہ کر کے شاگردوں کو الگ کر لیا اور ہر روز ترنس کے مدرسہ میں بحث کیا کرتا تھا۔ یہ 2 سال کا عرصہ تھا۔ اب اگر آپ آیت 10 پڑھتے ہیں، جہاں وہ کہتا ہے 2 برس تک یہی ہوتا رہا، یہاں تک کہ آسیا کے رہنے والے، کیا یہودی کیا یونانی، سب نے خداوند کا کلام سنا۔ اب آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ اس وقت افسس کی کل آبادی تقریباً 5 لاکھ تک تھی اور ایک بڑا تجارتی مقام تھا۔ یہ ایک فنکارانہ شہر بھی تھا۔ یہ وہ بھی مقام تھا جہاں ارتمس دیوی کا مندر تھا۔ زرخیزی کی دیوی اس کو کہا جاتا ہے، اور اس سے پورے ایشیائے کوچک سے لوگ آتے، وہ یہاں خرید و فروخت کرتے، کیونکہ افسس میں بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو شاید سمرنا، پرگمن، تھواتیرا یا کسی اور مقام سے خریدی نہ جا سکتی تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ خرید و فروخت کے لیے 40، 50، 60 اور 100 میل کا فاصلہ طے کر کے یہاں آتے تھے، اور وہاں تفریح کے لیے آتے، اور وہاں غیر قوم کے بتوں کی پرستش کے لیے بھی اور بد اخلاقی میں شامل ہونے کے لیے بھی جمع ہوتے تھے۔ لیکن جب وہ ان 2 سالوں کے دوران آئے تو انہوں نے کلام مقدس کی تعلیم لی، اور تھوڑے سے یہودیوں کے ساتھ جو اب مسیحی تھے، ترنس میں کلام سنا۔ یہاں صرف سوالوں کے جوابات اور عہد عتیق کی وضاحت پر بات ہوتی رہی ہے، اور یسوع مسیح کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ مسیحا ہے اور ان کی زندگیوں کو بدل سکتا ہے۔ یہ آیت یہ بیان کرتی ہے کہ کچھ لوگوں نے انجیل کے پیغام پر رد عمل کا اظہار بھی کیا، یعنی قبول کیا۔ دراصل بہت سے لوگ ایسے تھے جو جادوگر تھے، اور پھر وہ تبدیل ہونے کے بعد اپنی جادو کی کتابیں لے گئے اور شہر کے وسط میں ڈھیر لگا کر ان کو نظر آتش کر دیا۔ اور میں نے ایک دن ان سب کا آج کے دور کے معیار کے مطابق حساب لگایا تو یہ تقریباً 5 ملین ڈالرز کی مالیت کی کتب تھیں۔ 1.5 ارب سے زائد۔ ایک بڑی آگ وہاں پر جلی ہوگی، اور اس بات میں کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ لوگ پریشان ہوئے ہوں گے کہ یہ سب کچھ خفیہ طور پر نہیں بلکہ عوام کے سامنے اعلانیہ ہوا تھا، اور ان لوگوں نے مسیح کو قبول کیا اور واپس اپنے گھروں کو لوٹ گئے، یعنی جہاں سے وہ آئے تھے، تھواتیرا، سردیس اور فلادلفیا، اور انہیں عبادت کے لیے کسی جگہ کی تو ضرورت تھی، اس لیے وہ ایک دوسرے سے ملنے لگے، اور اسی طرح یہ کلیسیائیں وجود میں آئیں۔ یوحنا نے شاید اپنی خدمت کو جاری رکھا، جیسا کہ ہم نے پہلے کہا ہے، پہلے ان کلیسیاؤں میں خدمت کی، یا ممکن ہے کہ ان کا دورہ کیا،
या इन कलीसियाओं को तो मार भेजे हो। और इसलिए डोमिशियन ने इसको निशाना बनाया और उसको पतमस के जजीरा में मुकय्यद कर दिया, जहां उसे यह मुकाशफा मिला। यीशु ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम इन कलीसियाओं को खत भेजो, और इसलिए इफसस की कलीसिया के फरिश्ता को यह लिख कि जो अपने दाने हाथ में सितारे लिए हुए है, सबसे अहम बात जो जहन नशीन करने की जरूरत है वो ये है कि यीशु दोबारा से उन इब्तदाई कलीसियाओं के रूहानी रहनुमाओं को लिखवा रहा है। और एक चीज आप देखेंगे कि इन सब खतूत के आगाज में यीशु मसीह एक खास तरीके से अपना तारुफ करवाता है, जो कि इस बात से ताल्लुक रखता है कि उन मखसूस शहरों में क्या हो रहा है। और वो यूं है, जो अपने दाने हाथ में सितारे लिए हुए है, जो कि ज्यादातर क़यादत की जिम्मेदारियों के लिहाज से आम बात है, और कायदीन क़यादत की जिम्मेदारियों के साथ यीशु मसीह को खुद जवाबदेह होते हैं। इसलिए हमारे पास वो है जिसके हाथ में 7 सितारे हैं। 7 सितारे 7 रूहानी रहनुमा हैं जो इन कलीसियाओं के फरिश्ते हैं, और सोने के 7 चिरागदानों में फिरता है। वो ये फरमाता है कि बेशक ये कलीसियाएं हैं। अब मेरे ख्याल में ये हमसे 2 बातें करता है। पहली बात तो ये है कि इन कलीसियाओं के सारे रूहानी रहनुमा, चाहे वो इब्तदाई रहनुमा हुए हों या हम उन कलीसियाओं में दूसरे रहनुमा हूं, कायदीन हूं, हम मसीह यीशु की नुमाइंदगी करते हैं। इसलिए हमें यह जाहिर करना है कि वो कौन है। और पतरस अपने खत के 5वें बाब में रूहानी कायदीन की जिम्मेदारियों के हवाले से बात करता है। पहला पतरस 5 बाब में हम पढ़ते हैं, तुम में से जो बुजुर्ग हैं। पतरस अपने आप को बुजुर्ग पैरोकार के तौर पर पेश करता है कि मैं उनकी तरह बुजुर्ग और मसीह के दुखों का गवाह और जाहिर होने वाले जलाल में शरीक हूं। पतरस उस वक्त की बात करता है जब वो उस पहाड़ पर था जहां यीशु की सूरत तब्दील हुई। मैं उन रहनुमाओं को जो तुम्हारे बीच में हैं ये नसीहत करता हूं, शायद उन्हीं कलीसियाओं में जो कि उन शहरों और घरों में थी, उनको ये नसीहत करता हूं कि खुदा के उस गल्ला की गल्लाबानी करो जो तुम में है, लाचारी से निगहबानी न करो। और ये जवाबदेही है, बल्कि खुदा की मर्जी के मुवाफिक खुशी से और नाजायज नफा के लिए नहीं, बल्कि दिली शौक से, खुशी से करो। और जो लोग तुम्हारे सुपुर्द हैं उन पर हुकूमत न जिताओ, बल्कि गल्ला के लिए नमूना बनो। यीशु मसीह यूहन्ना को यह खतूत दे रहा है, और जब सरदार गल्लाबान जाहिर होगा तो तुमको जलाल का ऐसा सेहरा मिलेगा जो मुरझाने का नहीं। इसलिए हम कलीसियाओं में रहनुमा होते हुए मसीह के नुमाइंदे भी हैं, लेकिन हम मकामी ईमानदारों की रफाकत मसीह की मीरास भी है। और आज भी हमारे दरमियान वो चलता फिरता है क्योंकि वो मौजूद है। इफसियों पहला बाब और उसकी 11 आयत में बहुत खूबसूरत बात पेश की गई है। उसी में हम भी मसीह की मीरास हैं, जो उसके इरादा के मुवाफिक हम मसीह के हैं, और इसलिए वो हमारे दरमियान चलता फिरता है। मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। और मुकाशफा की पूरी किताब में आप उसकी मर्जी कलीसियाओं से मुताल्लिक देखेंगे। इसलिए वो इफसस की कलीसिया को लिख रहा है। अब यहां एक मसला है, वो उन्हें खालिस तालीम की पैरवी करने का हुक्म देता है।
मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। अब याद रहे कि इस खत के 40 साल बाद पौलुस ने इफसस की कलीसिया को यह खत लिखा, पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। तुम्हारी खुदा से जो पहली मोहब्बत थी, तुम्हारा एक दूसरे से प्यार करना मध्यम हो गया। बस ख्याल कर कि तू कहां से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर। और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। दूसरे लफ्जों में वो इफसियों की कलीसिया को कहता है, अगर तुम मेरी मर्जी के मुताबिक मुझसे और एक दूसरे से मोहब्बत नहीं रखोगे तो मैं तुम्हारा चिरागदान बुझा दूंगा और इसी तरह रोशनी बुझ जाएगी। और अगर आप कलीसियाई तारीख पर निगाह करें तो आप देखेंगे कि कुछ ऐसे हालात में रोशनी बुझ जाती है और कलीसिया खत्म हो जाती है और इसका वजूद भी बाकी नहीं रहता। हम इन कलीसियाओं के हवाले से ऐसा देखते हैं। इफसियों पहले बाब की 15 आयत में हम देखते हैं कि ये पौलुस ने 40 साल पहले खत की तरफ इशारा किया है। इस सबब से मैं भी उस ईमान का जो तुम्हारे दरमियान खुदावंद यीशु मसीह पर है और सब मुकद्दसों पर जाहिर है हाल सुनकर, इस खत में वो दुआ करता है कि वो खुदा की गहरी और वसी और अजीम मोहब्बत को जाने ताकि तुम यीशु मसीह में खुदा की मोहब्बत की वुसअत और गहराई जान सको। और यूं वो इससे दूर हो गए थे और इस तरह यीशु उन्हें तंबीह कर रहा है कि वो तौबा करें और जो कुछ उनके पास पहले कलीसियाई तौर पर था उसे बहाल करें। इससे जाहिर होता है कि खा कलीसिया कितनी ही बड़ी क्यों नहीं, उस कलीसिया की पुख्तगी से कता नजर अगर हम खुदा की मर्जी की पैरवी जारी नहीं रखते तो हम इस लिहाज से मुनहरफ होना शुरू कर देते हैं कि हमारी जिंदगियों के लिए खुदा की मर्जी क्या है। इसलिए मैं यहां पर एक सवाल उठाऊंगा, कुरिन्थियों को पौलुस की नसीहतें किस तरह इस बात की तस्दीक करती हैं कि यीशु ने इफसस की कलीसिया से क्या कहा। अगर आप पहला कुरिन्थियों और उसका 13वां बाब देखें तो बाब के इख्तिताम पर पौलुस कुरिन्थियों से कहता है, गर्ज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी हैं मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। और इसलिए वो लिख रहा है, या यूं कहें कि यीशु इफसियों की कलीसिया को लिख रहा है और कह रहा है, तुम इस हिस्सा में नाकाम हो गए हो, यानी उस अजीम मोहब्बत में। मुझसे मोहब्बत करो और एक दूसरे से मोहब्बत करो। और ये वो पैगाम है जो यीशु इफसस की कलीसिया को तारीखी तौर पर दे रहा है।